थैंक यू पद्मा दी। अभी हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे और भाई आशीष हमारे अगुवाई करेंगे। ओवर टू ब्रदर आशीष। Good morning, church. We praise God for this beautiful morning time where we have gathered to remember our Lord. That's been the great purpose on gathering on a Sunday morning. सुप्रभात कलीसिया। ये बहुत ही मुख्य मकसद रहा है हमारे रविवार को इकट्ठा होने का कि हम प्रभु को याद कर सकें। We took a short break from our series in Book of Genesis, given the circumstances we were in, the flood of sufferings that we were all engulfed in. We went into looking at hope, the Christian hope placed for us in the Bible. हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक से संदेशों की श्रृंखला को ले रहे थे, लेकिन चूंकि समय ऐसा आ गया कि एक तरीके से हम सभी उस दुखों की बाढ़ की चपेट में आ गए और उस दुखों के बीच में हमें ये जरूरी है कि हम मसीह की आशा जो है उसके बारे में बात करें, और इसलिए हम इन भागों से बात कर रहे हैं। Today we continue with the theme of hope in suffering, and we're going to look at how God is at work in our sufferings. और हमारा जो अब विषय जो कि जारी है कि दुखों के बीच में मसीही आशा, और इसी विषय को हम आगे जारी रखेंगे ताकि हम देख पाएं कि किस प्रकार से जब हमारे जीवन में दुख होते हैं, हमारे उन दुखों के बीच में भी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। Before we get in there, may I request us to, it fills me with joy when I see your faces as I preach, and I'm not joking. I'm telling you the truth. It's wonderful to see you, even though it's on the screen, but it's a joyful thing to see all of you on the screen. So for those who can switch on the camera, may I request you to do so. मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि मैं आपके चेहरों को देख सकूं। मैं अपने दिल की गहराई के साथ में इसको कहता हूं, और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप अपने कैमरा को चालू कर सकते हैं तो कृपया जरूर चालू कर लें। With that in mind, let's bow down in prayer before we enter in listening to God's word. Father, we thank you for this morning. What we have is a treasure trove in front of us. Lord, I feel weak to even speak from this passage. Feel quite limited. But Lord, we entrust ourselves to your hand. Speak to us. Speak to feeble people like us, so that we would be empowered, not by our own strength, which we have none, but by the strength of the Spirit who is at work in us. Help us to listen to your word attentively. Give us a word in our mouth as we speak. We ask this in Jesus' precious name. We have learned that in the midst of suffering, we must view our suffering from the hope of that coming glory which we have in Christ Jesus. हमने इस बात को पिछले संदेशों में समझा था कि जब भी हम दुख के बीच में होते हैं तो हम दुख को परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के वो जो महिमा है, अनंत महिमा है, उसके साथ में जो आशा जुड़ी हुई है, उस नजरिए से हम अपने दुखों को देखें। We had seen in between verses 18 and 25 that the coming glory is certain because it is bound up in the will of God. हमने 18वीं आयत से लेकर के 25वीं आयत तक के बीच में इस बात को देखा था कि भविष्य की जो मसीही आशा है वो जरूर हमें प्रदान की जाएगी, क्योंकि उसका होना परमेश्वर के वचन के हिसाब से जरूरी है। And between verses 26 and 27, we had seen how we are weak and we are sustained in this hope by the help of the Spirit who intercedes for us while we do not know what is happening, while we do not know what we must pray for. और 26 और 27वीं आयत में हमने इस बात को देखा था कि हम कितने कमजोर हैं इन दुखों के बीच में, और इन कमजोरियों के बावजूद भी
पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम इस अनंत काल की जो मसीही आशा है, उसको हम थामे रहें, उसका इंतजार करते रहें और इसके साथ में ही जब हमको नहीं पता होता है दुखों के बीच में कि हमें क्या करना चाहिए, यहाँ तक कि हम इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हमको प्रार्थना करना भी नहीं आता, तब पवित्र आत्मा हमारी किस प्रकार से मदद करता है, इसके बारे में भी हमने सीखा था। Today we're going to see how our present suffering fades in the light of the coming glory because God is at work. Hence, I've titled the sermon, The Good Work of God. और आज हम इस बात को देखेंगे कि हमारे आज के जो दुख हैं वो आने वाली उस मसीही आशा के सामने बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं और वो इसलिए ऐसा है क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है और इसीलिए आज के संदेश का शीर्षक मैंने रखा है कि परमेश्वर जो है वो अपने कार्य में लगा हुआ है। Our focus being the work of God, which we find in verse 28, that God, all things work. That's our focus this morning. आज की सुबह हमारा जो ध्यान होगा वो रोमियो 8 उसकी 28वीं आयत पे होगा जहां पे लिखा है कि परमेश्वर जो है वो कार्य कर रहा है, भलाई के लिए कार्य कर रहा है, इस बात पे हमारा ध्यान होगा। Our outline would be verses 28a, that's the first part of 28. What do we know? And then 28b to verse 30, how do we know? There are two questions that we answer as we look through this passage. जैसे आज की सुबह हम इस भाग को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारे सामने रूपरेखा के तौर पे दो बिंदु हैं। पहला बिंदु ये होगा कि हम क्या जानते हैं, ये एक सवाल के रूप में होगा और ये 28वीं आयत की पहली कुछ पंक्तियों में पाया जाएगा। और दूसरा जो बिंदु होगा रूपरेखा का वो है कि हम किस तरीके से जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं, वो 28 आयत के अंतिम लाइनों से 30 आयत तक में पाया जाता है। What do we know? Paul says, and we know for those who love God, all things work together for good for those who are called according to his purposes. So there is something that we know that Paul is talking about. और पहला बिंदु कहता है कि हम क्या जानते हैं। अगर हम इस बात को देखें तो पौलुस 28 आयत में कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो हम क्या जानते हैं। Now, the point we must understand is that this verse has been subjected to a lot of wrong applications because it's been taken out of its context in which Paul writes this verse. और जब हम इस बात को कहते हैं तो हम इस बात को ध्यान में रखें कि इस बात के संदर्भ को जिस बात को लेकर के ये आयत कही गई है उसके बहुत ही अलग-अलग अर्थ निकाले गए हैं। पौलुस जो कहता है उसका एक विशेष अर्थ है और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। So what we try to do today is to put this verse in its context and understand what Paul is trying to tell us. और इसलिए आज हम इस बात को करेंगे कि पौलुस जिस संदर्भ में इस आयत को लिख रहा है उस संदर्भ के हिसाब से हम इस आयत को समझेंगे। Now Paul says that Paul is assuming a fact that his readers know something glorious while they face their present sufferings. The book of Romans is written in a context of suffering. It is written in the context of pain and struggle and persecution. Now, in that context, Paul assumes that their readers, his readers, know something glorious. और यहाँ पे पौलुस जब कहता है कि हम जानते हैं, तो पौलुस इस बात को मान लेता है कि उसके जो पढ़ने वाले हैं, वो परमेश्वर के महिमामयी बातों को जानते हैं। यानी कि जिस जमाने में वो रह रहे हैं, उस जमाने में जितना दुख भोग रहे हैं, उन दुखों के बीच में जो बात उनको जानना चाहिए, वो बात वो जानते हैं। इस बात को पौलुस मान लेता है। And that what they know, that glorious thing that they know, helps them to consider or helps them to see how their sufferings is fading in comparison to that glorious reality. और जिन बातों को वो लोग जानते हैं, जिन बड़ी-बड़ी बातों को परमेश्वर के वचन से वो लोग जानते हैं, ऐसी बातें जिसकी सहायता से उनके आज के जो दुख हैं, वो आने वाली महिमा की तुलना में बिल्कुल फीके लगते हैं, उन बातों को यहाँ पे पौलुस कहता है कि आप उन पे फिर से विचार करें। Now, before he writes what we know, he has actually told them that we do not know. That is in verse 26. We do not know what to pray. Therefore, he says that Spirit is at help in us.
और इसके पहले कि पौलुस उनसे कहे कि तुम क्या जानते हो, वो कहता है कि ऐसी कुछ बातें हैं जिन्हें तुम नहीं जानते हो, और वो 26वीं आयत में कहता है कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, और पवित्र आत्मा इसमें हमारी मदद करता है। But in our passage today, he says we know, and I feel we have failed in knowing what God wants us to know because we have become very cold in our faith in Christ Jesus. और लेकिन 28वीं आयत में आज पौलुस कहता है कि ऐसी कुछ बातें हैं जिनको हम जानते हैं, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो है इन बातों को जानने में चूक गए हैं, और शायद चूक इसलिए गए हैं क्योंकि हमको लगता है कि हम अपने विश्वास में बहुत पुराने हो गए हैं, बहुत बहुत या एक तरीके से कहें कि हमारी उम्र बहुत हो गई है हमारे विश्वास में। I feel we have lost interest for the scriptures and the learnings that we must know from the scriptures. मुझे लगता है कि वचन को सीखने में जो हमारी दिलचस्पी है, उसको हमने खो दिया है। Christianity is knowing God, my dear church, and unless we open the pages of the Bible, unless we learn in the context of a community, that is, participate in church teaching activities, how will we know what we are supposed to know? प्रिय कलीसिया, अगर मैं ये कहूं कि मसीहत क्या है, तो मसीहत प्रभु यीशु मसीह को बाइबल के पन्नों से, परमेश्वर को बाइबल के पन्नों से जानना ही मसीहत है। लेकिन अगर हम ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर हम दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं बाइबल को पढ़ने में, पवित्र वचन को समझने में, तो इसका मतलब ये है कि जो बातें हमें जानना चाहिए वो हम नहीं जान पाएंगे। Christianity, as I said, is knowing God, and I'm so happy that last evening, yesterday, most of us were able to, put our observations in the group about the verse 28. I'm so happy, and I would encourage others to do so. And in doing so, we are becoming a community which is learning together, and in our learnings together, we know what we are supposed to know, and that's what Paul is going to talk about, that we know something great. कल मैंने इस बात को देखा कि इस आयत से संबंधित काफी लोगों ने अपने जो भी गौर किया, उन्होंने इस आयत में उन सारी बातों को आपने लिखा, और मैं अन्य भाई बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि इसी प्रकार से आप जो बातें किसी वचन में गौर करते हैं उनको साथ में बांटें, क्योंकि मसीह को जानना जो है वो सिर्फ व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि कलीसिया के साथ में मिलकर के मसीह को जानना ही असली मसीहत है। So what do we know? What is that Paul is telling us that we know? What is that we know? We know that Paul says in his verse 28, that all things work together for good. और यहाँ पे पौलुस कहता है, वो सवाल कहता है कि हम जानते हैं। अभी सवाल है कि हम क्या जानते हैं, तो वो कहता है कि हम ये जानते हैं कि सब बातें मिलकर के भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। Now, when you have to ask, when you think about the word good, you have to ask, what is this good? और जब आप ये शब्द यहाँ पे पढ़ते हैं कि भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, या सब बातें मिलकर अच्छाई ही को उत्पन्न करती हैं, तो ये भलाई शब्द का क्या मतलब है, या अच्छाई शब्द का क्या मतलब है? The good that Paul mentions should be a point of interest for us, and we must define it in the context that Paul puts it in, so that we do not misinterpret the word. और इसलिए यहाँ पे भलाई शब्द को जिस संदर्भ में पौलुस समझाना चाहता है, उसी अर्थ में हम समझें, ताकि हम इस वचन की आयत के अर्थ को गलत अर्थ में ना निकाल दें। When we think about good, we almost always think about good as something happening to us materially or physically. जब हम कुछ भले होने के बारे में सोचते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में, यानी शारीरिक रूप से या भौतिक रूप से, सांसारिक रूप से हमारे जीवन में कुछ भला होगा, कुछ अच्छा होगा, और इसी प्रकार से हम भलाई को समझते हैं। So it could be a job that we wanted, which we didn't get, and then we look at this verse and say something good is going to come out of it, or probably a better job is
is being readied for us. Or we could think about this verse in a marriage proposal, where one marriage proposal fails on which we had pinned our hope, and then we look at this verse and say, okay, probably God has kept something better, something good for us. और जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो कई बार हम इसको नौकरी के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको नौकरी नहीं मिल रही होती है या हमको अच्छी नौकरी की तलाश होती है, तो हम इस आयत को पढ़ते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम आशा रखें, हमारे साथ में भला ही होगा, हमको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। या कई बार शादी करने के बारे में सोचते हैं, या हमने मान लीजिए किसी के साथ में हमारी शादी होनी थी और हमें पक्का था कि नहीं, शादी हो ही जाएगी, लेकिन कुछ गड़बड़ हुआ और नहीं हो पाई, तो हम कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने जो है इससे और अच्छा रिश्ता हमारे लिए रखा है, और इस आयत का हम इस्तेमाल वहां पे भलाई के लिए करते हैं। That is not what Paul is trying to tell us here. ऐसी बातें, ऐसी भलाई के जो ऐसे अर्थ हैं, ऐसे अर्थ के बारे में पौलुस यहाँ पे नहीं कहता। Paul is not trying to tell us that somehow some things will work out for our good, in the near future. That's not what he's trying to say. पौलुस ये नहीं कहना चाहता है कि आने वाले समय में, हमारे जीवन में, भविष्य में किसी प्रकार से मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छा हो जाएगा। पौलुस ये नहीं कहना चाह रहा है। Today is not bad, but tomorrow, based on this verse, tomorrow could be better. That seems like to be the promise in this verse. This is not a blinded optimism. और इस आयत को देख करके ऐसे लगता है कि अच्छा हो सकता है कि अगर आज का दिन सही नहीं है, आज हमारा सही नहीं है, तो आने वाला कल जो है वो हमारा सही होगा। यहाँ पे इस आयत में ऐसे नहीं है कि मतलब एकदम आंख मूंद करके आशावादी बनने के लिए नहीं कहा गया है। After all, God is good. Therefore, some good has to come out. This is not blinded optimism. This is not positivity unlimited by shutting out negativity. और हम सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर जो है वो भला है और इसलिए वो भला ही करेगा, तो इस प्रकार से हम इस आयत का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम याद रखें कि ये आंख मूंद करके आशावादी होने वाली बात इसमें नहीं कही गई। इसमें ये नहीं कहा गया है कि नहीं, सकारात्मकता से भर जाओ, पॉजिटिव ही होगा हमारे जीवन में। ये आयत उस बात का बढ़ावा नहीं देती। This good, I believe, refers back to verse 21. This good, I believe, is referring back to verse 21, which talks about the freedom of the glory of the children of God and the redemption, this freedom which is achieved in the redemption of this bodies. और मैं इस बात पे विश्वास करता हूं कि यहाँ पे जिस भलाई शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसका अर्थ 21वीं आयत में पाया जाता है। और 21वीं आयत जहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता, भलाई का ये मतलब है। And we hope in it. We have certain hope in it because it is subjected in hope by God. और ये आशा हम इसलिए ऐसी आशा करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने इस प्रकार से ये आशा हमारे अंदर दी है कि जो है परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता और उनके जो शरीर हैं वो भी बदल जाएंगे। We must understand that history is not like a runaway train without a driver, which can only end in tragedy. That's not how history is heading. God is at the helm of affairs of this world. हम इतिहास को ऐसा ना समझे कि ये कोई एक रेलगाड़ी जैसा है जिसमें कोई ड्राइवर नहीं है और ये चलती जा रही है और किसी खाई में गिर जाएगी। नहीं, परमेश्वर जो है वो इतिहास के ऊपर मालिक है और इतिहास की दिशा जो है वही निर्धारित करता है। He has purposed the history to reach a certain destination. That is why he sent his only begotten son into this world. और उसने ये ठाना है कि हमारे मानवों का जो इतिहास है, मनुष्य का जो इतिहास है, उसका एक ठिकाना है और उस ठिकाने तक पहुंचाने के लिए ही उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। That is why Jesus came back from the dead, because there is a destination to go to. There is the destination which this history is heading to. प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से होकर के वापस जिंदा हो उठा। वो इसीलिए जिंदा हो उठा क्योंकि इतिहास का एक ठिकाना है, एक अंतिम स्थान है जहां पे इस इतिहास का प्रतिफल निकलेगा, या सही जगह जहां इस इतिहास को पहुंचना चाहिए वहां पहुंचेगा।
So this is the good that Paul is talking about, that there is going to be the freedom of glory in the redemption of our bodies, tied to which is the whole anticipation that the creation is groaning with. और इसलिए यहाँ पे पौलुस जब भलाई शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसके भलाई शब्द का इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि परमेश्वर की संतान जो हैं उनको महिमा की आजादी मिलेगी। और ये आजादी किस प्रकार से मिलेगी? उनके शरीरों के बदलाव के द्वारा मिलेगी, शरीरों का जो छुटकारा है उनको मिलेगा, उसके द्वारा मिलेगी। और ये जो सृष्टि है, सृष्टि के छुटकारे के द्वारा भी उनको ये आजादी मिलेगी। और इस प्रकार से ये बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी। He anticipated, restored good creation of the Lord, which he created out of his goodness and called it good in Genesis chapter 1, which was decimated by sin. God has purposed it so that he will restore its glory, the former glory, the glory which was there pre-fall, back to it again. And that is the destination where this history is heading to. पौलुस जो है वो इस बात को बताता है कि सृष्टि जो है, सृष्टि की एक महिमा थी। हमारे पाप करने के कारण उसकी वो महिमा जो है बिगड़ गई, लेकिन परमेश्वर जो है सृष्टि की उसी महिमा को बहाल करने वाला है। अगर आपने गौर किया हो कि जब सृष्टि बनाई गई थी तो परमेश्वर ने उस सृष्टि को देख करके कहा कि ये अच्छा है, मतलब सृष्टि भली है। उसी भली सृष्टि को परमेश्वर जो है वो दोबारा बहाल करेगा और उसी भलाई के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। Okay, we do not know what to make of our sufferings as it strikes. We do not know what to make of all the tragedy as it arises. We do not know what to understand about our battle with sin in this present time. But we know, Paul says, we know this is heading to some destination, and that is good, and that is the restored glory of creation, of how God meant and purposed it to be. और पौलुस कहता है कि जब हम आज के जमाने में इस दुनिया में हैं तो आज हमको ये समझ में नहीं आता है कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। परेशानियां आती हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। इस दुनिया में जब हमें पाप से लड़ना पड़ता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। लेकिन पौलुस कहता है कि एक समय आएगा, एक ठिकाना ऐसा है जो कि परमेश्वर ने निर्धारित किया है, परमेश्वर ने ठाना है, और वो सृष्टि की महिमा की आजादी के द्वारा उस सृष्टि की जो भलाई जो पहले थी, पाप के गिरने के पहले थी, उसी सृष्टि को बहाल करके वो हमें उस अनंत आशा को प्रदान करेगा। We know that in Christ Jesus, the Father in heaven is working or causing everything to finally turn into the ultimate good that he intends it to be, or that he intended it to be. और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर पिता जो है वो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह में होकर के सारी बातों को इस तरीके से मोड़ रहा है कि सारी बातें जो हैं वो अंत में जिस भलाई का इरादा उसने किया है उसी भलाई के इरादे के हिसाब से सारी चीजें हों। God never left his creation. He was always active. He was always involved. He was always purposeful in his work. परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को बना करके यूं अनाथ नहीं छोड़ दिया। वो हमेशा उस सृष्टि के साथ में लगा रहा, वो हमेशा इस सृष्टि में सक्रिय था। उसका एक मकसद था इस सृष्टि के साथ में, और उसी मकसद को वो आज भी पूरा कर रहा है। This is what Augustine says, that God is so good as to permit no evil to exist, except that God is so powerful as to be able to draw something good from any evil. ऑगस्टीन करके प्रभु के एक भक्त हैं, और वो ये कहते हैं कि परमेश्वर इतना महान है कि वो चाहे तो किसी भी बुराई को रहने ही ना दे, लेकिन परमेश्वर इतना पावरफुल है, परमेश्वर इतना सामर्थ्यशाली है कि वो बुराई से भी अच्छाई, बुराई से भी भलाई निकाल सकता है। Yet that is why Joseph said, what you meant to evil turned out to be good. God meant it to be good. और इसीलिए यूसुफ जो है अपने भाइयों से, जिन्होंने उसको उस गड्ढे में फेंक दिया था और बेच दिया था, उनसे वो कहता है कि तुमने तो मेरे लिए बुराई चाही, लेकिन उस बुराई में भी परमेश्वर ने मेरे साथ में भलाई की।
So Paul says, he says, I want to get back to that passage. He says, all things, that is, now, because Jesus is risen from the dead, because God is at active work through the life and the work of Jesus Christ in restoring the world back to its glory, he's saying that all things now work together for the glorious. Everything is working towards that destination. और इसलिए पौलुस कहता है, चूंकि परमेश्वर जो है वो अपनी इस सृष्टि में सक्रिय है, उसके साथ में लगा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो सारी चीजों को बदल रहा है, और इसलिए पौलुस कहता है कि सारी चीजें मिल करके भलाई को ही पैदा करेंगी. All things here is a reference to all situations in life, whether it is success, failure, abundance, lack, health, sickness, fight with sin, lust, and addictions, whatever it is, my dear church, my dear brothers and sisters, all things are made or are being turned or are being caused to work towards that good, that eternal, glorious good of our lives. और इसलिए यहाँ पे जब सब बातों को कहा गया है, तो ये सब बातें मतलब हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियां हैं, चाहे हमारी जीवन की अच्छी परिस्थितियां हो, चाहे हमारे जीवन की बुरी परिस्थितियां हो, चाहे हमारे दुखों का समय हो, चाहे हमारे आनंद का समय हो, चाहे हमारे ऐसे समय हो जहां पे हम पापों के साथ में संघर्ष करते हैं, चाहे हमारे अन्य इस प्रकार से दुखों के समय हो, सारे परिस्थितियां जो हैं वो मिल करके भलाई ही को उत्पन्न करेंगी, उस भलाई को जिसकी बहाली के लिए परमेश्वर जो है वो काम कर रहा है. Paul makes verse 18 the backdrop to verse 28. और 18वीं आयत को भी पौलुस जो है वो 28वीं आयत के लिए एक संदर्भ के रूप में, एक पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल करता है. Paul says in verse 18, I consider. पौलुस 18वीं आयत में कहता है कि क्योंकि मैं समझता हूं. I consider. You consider something. To consider something, you must know it well. जब आप किसी को समझते हैं या किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब आप उस चीज के बारे में अच्छे से जानते हैं या जानना पड़ेगा आपको. In other words, we can't consider anything we don't know. कहने का मतलब ये है कि हम जिस किसी चीज के बारे में जानते नहीं हैं, तो हम उसके बारे में कोई समझ नहीं रखते. So Paul is saying that we consider our sufferings in the present time through the lens of the truth of a risen Savior. पौलुस कहता है कि हमारे जीवन के जो आज के दुख हैं, उनको हम प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता जो जी उठा है, उसके लेंस से देखते हैं, उसके नजरिए से हम देखते हैं. And when we compare that reality with our present reality, we understand that there is a coming good. There is a glorious point towards which our life is headed in Christ Jesus. जब हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की सच्चाई को देखते हैं, तब हम इस बात को जान पाते हैं कि हमारे दुखों की भी एक सच्चाई है, यानी कि भविष्य में एक सच्चाई है जिसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. And all these things are working together for good, because this good work is a work. It's not an auto mode, you see. It's a work intentional. It is a work which is out of love. It's purposeful work. It knows what it is doing. It knows how it is serving. And therefore, this is a good work, and this is a work out of love. और यहाँ पे जो हम जिस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो काम कर रहा है और वो भला है, तो ये भला काम इसलिए भला है क्योंकि परमेश्वर ने इस काम को ऑटो मोड पे नहीं रख दिया कि मतलब ऑटोमेटिक या अपने आप से ही ये काम हो रहा है. नहीं, परमेश्वर सक्रिय रूप से लगा हुआ है इस पूरी सृष्टि में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और यही चूंकि वो सक्रिय रूप से लगा हुआ है, इसलिए सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करेंगी. You see, creation, we were learning in our sessions in book of Genesis, that creation flows out of the Father's love. It's not random. It's not an afterthought. It's not something he leaves to its own fate. He's active. He's involved. He's doing it because he is in love. He's doing it out of love. So creation, the goodness of creation is flowing out of the love of God.
और इसलिए हमने जब उत्पत्ति हम सीख रहे थे, हमने इस बात को देखा था कि सृष्टि जो है वो परमेश्वर के प्रेम से निकलती है, परमेश्वर के प्रेम से पैदा होती है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को बस यूं ही कभी ख्याल आया कि हाँ कुछ चलो कुछ बना देते हैं और उसने बना दिया, या बना करके भूल गया कि अरे ठीक है चलो अपने आप से चलती रहेगी ये। नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने प्रेम में होकर के इसको बनाया और प्रेम में होकर के ही इसको भी संभालता है वो। इसमें वो शामिल है और बड़े ही सक्रिय रूप से इसके साथ में लगा हुआ है। The word work there in this passage, as we see God, all things work. You see, it might give you an impression that it is in the auto mode, but if you scan through the passage, you would understand the subject of this work is God Himself, and this work is happening out of love, and this work is in the present active indicative, which I'll try to explain. Don't bother with those things. That's a grammar structure there. अंग्रेजी अनुवाद में वर्क यानी काम शब्द का इस्तेमाल किया गया कि परमेश्वर काम कर रहा है, या परमेश्वर सारी बातों को मिल करके इस प्रकार से कार्य कर रहा है कि भलाई को उत्पन्न करती हैं। हिंदी अनुवाद में हमारे ये शब्द नहीं है कि परमेश्वर कार्य कर रहा है भलाई को उत्पन्न करने के लिए, लेकिन अंग्रेजी अनुवाद के हिसाब से देखें तो वहां पे कार्य शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वो ऐसा नहीं है कि अपने आप से ये कार्य हो रहा है, नहीं, ये कार्य हो रहा है और परमेश्वर इस कार्य को वर्तमान काल में कर रहा है, आज के समय में कर रहा है, बड़े सक्रिय रूप से कर रहा है, और वो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। इसके बारे में हम समझेंगे। The present tense means it's an ongoing work. It's not stopped with something. It's still going, and He's going to achieve it. He's going to bring it to completion. अगर हम ये कह रहे हैं कि परमेश्वर का कार्य जो है वो वर्तमान काल में हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो है वो अभी भी कार्य को कर रहा है। परमेश्वर जो है वो इस कार्य को पूरा करेगा, ये लगातार उसका काम हो रहा है। And active, the word, the grammar structure active there indicates to us that it's not, left to its own functioning. It is God actively doing it. और यहाँ पे जो व्याकरण के हिसाब से अगर हम देखें तो वर्क शब्द जो काम शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वहां पे वो सक्रिय रूप उसका दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने मशीन के रूप में कुछ ऐसा नहीं कि कुछ प्रोग्राम सेट कर दिया और अपने हिसाब से चल रहा है, नहीं, परमेश्वर ये जो सक्रिय रूप से इस कार्य को कर रहा है वो इस कार्य को करने वाला है। So this work is ongoing. This has been initiated from the point of the creation. You see its height of this work in the person of Jesus Christ, and as he goes on to the cross, and then he dies on the cross and he's resurrected back. So you see the height of the work of God in Jesus Christ, and now you see the work of God through our lives and the life of the church on this world. So this work is ongoing. अगर हम परमेश्वर के काम को देखें तो आप सृष्टि से देखिए, सृष्टि से हम परमेश्वर के काम को मानव के इतिहास में देखते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर इतिहास में काम करते रहा, और काम करते करते एक ऐसा समय आया जो परमेश्वर के काम की सबसे बड़ी सीमा कही जाती है, सबसे उम्दा सीमा, सबसे चरम सीमा कही जाती है, जहां पे उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे मरने दिया। उसके बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो गाड़ा गया और जी उठा, ये भी परमेश्वर का काम था। और उसके बाद में आज भी कलीसिया के रूप में परमेश्वर हम सभी के जीवन में आज भी काम कर रहा है। The indicative means that this is a fact, which means that no one adds or edits or aids this work. This is completely purely the divine work. That's it. Come again. The indicative means that this is a fact. No one adds, edits, or supplements or aids this work. This is completely and purely the work of God. यहाँ पे अंग्रेजी में जो हम इंडिकेटिव शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम उसको हिंदी में कहें तो परमेश्वर का ही ये काम है। ये जो परमेश्वर दिखा रहा है जिस काम को, ये किसी और का काम नहीं है, ये एक सच्चाई है, इसमें और कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का काम है। The fact that this is a work of God unto the salvation of mankind, and we see the work of God in Jesus Christ, that is what makes this a good news for us. और परमेश्वर किस प्रकार से
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा काम कर रहा है और हमारे जीवनों में काम कर रहा है कि भलाई उत्पन्न हो, और यही बात जो है इस बात को अच्छा समाचार या सुसमाचार बनाती है। Therefore, Christian faith is not a collection of teachings and doctrines or chanting of mantras or a pilgrimage to undertake. It's a good news which must be believed. And the belief is that God is at work to restore everything to its former glory, which was there before sin. और इसलिए मसीहत जो है वो कोई मंत्रों का जाप नहीं है, वो कोई कर्मकांड नहीं है, वो कोई पूजा पद्धति नहीं है, या किसी तीर्थ यात्रा पर जाने वाली बात इसमें नहीं है, क्योंकि मसीहत जो है वो एक शुभ समाचार है, एक अच्छा समाचार है। परमेश्वर ने भलाई करने के लिए अपने पुत्र के द्वारा जो भला काम किया सृष्टि से आरंभ से लेकर के, उसी भले काम के ऊपर हम विश्वास करते हैं, और यही शुभ समाचार है। Paul is asking us to connect our present circumstances, which could be anything, whether it is abundance or suffering or whatever it is, to the ongoing work of God as evidenced in the person of Jesus Christ. पौलुस जो है वो इस बात को हमसे कह रहा है कि हमारे जीवन की चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे हम तंगी में हो, चाहे हम भरपूरी में हो, हम अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के उस काम के साथ में जोड़ लें जो कि उसने प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा किया और आज भी वो हमारे जीवनों में कर रहा है। This means that the suffering is made a friend for this journey unto that ultimate good. तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ये यात्रा है उस अंतिम ठिकाने के लिए, उसमें जो दुख हैं वो हमारे एक मित्र के रूप में बन जाते हैं। That is why Paul would outrageously say, rejoice in your suffering, because we know that God is at work to accomplish that good. और इसलिए पौलुस जो है वो बड़े ही साहस के साथ में, बड़े हिम्मत के साथ में, बिना किसी शर्त के कहता है कि अपने दुखों में आनंदित रहो, क्योंकि वो जानता है कि इन दुखों के द्वारा ही परमेश्वर जो है वो अंतिम उस भलाई को पैदा करेगा। Mind you, he is not undermining the pain and the depth of the suffering. He is not saying that. He is saying suffering is real. It is happening in our lives. But then the ultimate good awaits us. And even this suffering is leading up to that good. और इस बात को याद रखें कि पौलुस हमारे दुखों को कम नहीं बोलता या हमारे दुखों का मजाक नहीं उड़ाता, वो दुखों की गहराई को समझता है, लेकिन इसके साथ में वो ये भी समझता है कि इन दुखों का एक मकसद है, इन दुखों के द्वारा एक दिन अंतिम भलाई पैदा होगी, और उसी की तरफ नजर लगाने के लिए पौलुस कहता है। And then you would ask, or we would ask the question, how do we know that God is working all these things to good? अब अगर ऐसा है तो हम ये सवाल करते हैं कि अगर ठीक है, मान लिया कि परमेश्वर जो है इन सारी चीजों के द्वारा भलाई उत्पन्न करेगा, लेकिन सवाल उठता है कि कैसे करेगा, कैसे कर रहा है वो। That brings us to the second point this morning, and that is how do we know that? Sorry. How do we know that that everything is working to the good? और इस बात से हम आज के संदेश के दूसरे बिंदु पे पहुंचते हैं, जहां पे हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि अगर हम जानते हैं कि सारी बातें मिलकर के भलाई पैदा करती हैं, तो हम इस बात को कैसे जानते हैं। So Paul would say, just a minute, please. This is a problem with technology. Just give me a sec. Paul would say in between 28b and 30 that there are 5 things that God does, and in regards to bringing, this glorious finale. और पौलुस जो है वो कहता है कि 28वीं आयत की अंतिम पंक्तियों से लेकर के 30 आयत तक में परमेश्वर 5 बातों को बताता है जिससे वो हमारे दुखों का जो अंतिम महिमा में ठिकाना है वहां तक चीजों को पहुंचाएगा। Now we don't have time today. Whenever we do a study on Romans, we will take them one by one. Today, what I want to do is to take a panoramic view and to try see how do we know that all of these things work together for good. आज हम लोग समय की कमी होने के कारण उनको एक एक करके नहीं समझेंगे, बल्कि हम एक साथ लेकर के हम उन 5 चीजों को देखेंगे, और अगर कभी समय मिलेगा तो हम उसको एक एक करके देखेंगे। Now, if you notice from this passage, there's a use of pronoun, heavy use of pronoun. Is he foreknew, he predestined, and that he might, and it keeps going. That the use of pronoun is
is a good number, which indicates that there's this personal involvement or activity of God. अगर आप व्याकरण के हिसाब से आप इन आयतों को देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे सर्वनाम का बहुत इस्तेमाल किया गया है, जैसे उनके, उन्हीं, जिन्हें, उसने, उसके, ये सारे सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। So the हिंदी good व्याकरण that के comes, हिसाब से सर्वनाम जो है वो एक रिश्ते को दिखाता है। the good coming out of all this is not because it is in auto mode, it just happens to us, but it is because God is at work and he's involved in it. और ये जो भलाई है वो अपने आप से हमारे जीवन में पैदा नहीं हो जाती। भलाई इसलिए हमारे जीवन में होती है क्योंकि परमेश्वर जो है वो लगा हुआ है, वो शामिल है अपनी सृष्टि में, हमारे जीवनों में। And he says that we know this is happening. पौलुस कहता है कि हम जानते हैं कि ऐसा हो रहा है। Why do we know that this is happening? Because we are being conformed to the image of his son. हम क्यों जानते हैं कि ऐसा हो रहा है? क्योंकि लिखा है कि वह हमें उसके पुत्र के स्वरूप में हमें ठहरा रहा है, बदल रहा है। The son has been witnessed as the resurrected savior. जो पुत्र है उसको जीवित उद्धारकर्ता के रूप में हमारे सामने प्रदर्शित किया गया है, और परमेश्वर का ये एक सबूत के रूप में उसने हमारे सामने रखा है। In resurrection, in his resurrection, in his appearance, after having coming out of the tomb, he appeared to 500, including the 11 his own and Paul, and that becomes the guarantee of our coming glory. हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो जी उठने के बाद में लगभग 500 लोगों को दिखाई दिए और उसके बाद में पौलुस को भी दिखाई दिए। ये सारी बातें जो हैं वो इस बात की गारंटी हैं कि परमेश्वर ने भविष्य में आने वाली महिमा के लिए हमारी भलाई की जितनी भी बातें की हैं वो सही हैं। We are being conformed to the image of the resurrected Savior, who himself is the image of the Father. हम जीवित हो उठे उस उद्धारकर्ता के स्वरूप में दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं, जो स्वयं अपने पिता, उस पिता परमेश्वर का प्रतिरूप है। The word conformed here is not a simple word. It's from the Greek word comes our English word morphos, which means that there is an internal transformation that is taking place within us. Because there is a resurrected Savior, and because of that resurrected Savior, because God is at work in us, there is this internal transformation that is taking place within us. और यहाँ पे बदलाव शब्द के लिए जो इस्तेमाल किया गया है, ग्रीक भाषा का शब्द, यूनानी भाषा का शब्द, वो इस बात को बताता है कि हमारे अंदर जो ये बदलाव हुआ है वो इस जीवित हो उठे प्रभु यीशु मसीह के कारण हुआ है, और ये बाहर का बदलाव नहीं है, ये अंदर का बदलाव है। So this is not a circumstantial change that Paul is talking about. This is not saying that, okay, today good did not happen, probably tomorrow it might happen. That's not Paul's idea. Paul is saying change is happening inside you. You are being transformed to the image of the Son for that ultimate glory on that day when he comes back. और यहाँ पे पौलुस कहता है कि हम सभी लोग उस पुत्र, उस प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हम ढलते जा रहे हैं, हम बदलते जा रहे हैं। तो जब इस बात को वो कहता है तो वो ये नहीं कहता कि हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, नहीं, हमारे जीवन की परिस्थितियां वैसी ही हैं, लेकिन हमारे जीवन का जो अंदरूनी भाग है, हमारे जीवन का जो आत्मिक भाग है, वो प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में लगातार बदलता जा रहा है, ताकि जो अनंत काल की महिमा की आशा हमें दी गई है उसके हिसाब से हमारा बदलाव हो जाए। There's this divine activity which is happening, being foreknown and then predestined and called and justified and glorified. Someone called this as the golden chain of our salvation. और यहाँ पे हम एक स्वर्गीय क्रियाकलाप को होते हुए देख रहे हैं, एक स्वर्गीय
काम को होते हुए देख रहे हैं, और स्वर्गीय काम जो है वो एक चेन के रूप में है। और वो किसी ने इसको सुनहरी चेन कहा या गोल्डन चेन कहा है, जिसमें कि उसमें लिखा है कि उसने पहले से हमें जाना, फिर उसने ठहराया, हमें बुलाया, धर्मी ठहराया और हमें महिमित किया। ये 5 बातें हम देखते हैं। Today, I'm not going to go into the doctrinal depths of each of these categories of our salvation or the order of salvation, but I want to highlight the reason behind this divine activity. और ये हमारे उद्धार की जो सुनहरी श्रृंखला है, जिसमें कि हम 5 बातें जो कि सैद्धांतिक रूप से हैं, सिद्धांत की बड़ी गहरी बातें हैं, उनको हम एक-एक करके नहीं देख पाएंगे आज, लेकिन हम उनको एक साथ मिल करके देखने की कोशिश करेंगे। This is an interesting word, foreknown. ये एक बहुत ही दिलचस्प शब्द है कि उसने पहले से जान लिया, पहले से जान लेना, ये बड़ा एक दिलचस्प शब्द है। In this word is the word know or known. अगर आप अंग्रेजी में देखें तो इसमें जानना ये शब्द जुड़ा हुआ है। Now, if you have to understand this word, you have to go back to the Old Testament. That's why studying Bible is so important, because foreknowledge primarily doesn't mean that he foresaw something or foreknew something, but what it means here is that he has known them, he has placed his covenantal love on them, on whom he has chosen to love, or he chooses to love them. इसलिए जब हम यहाँ पे इस शब्द को पढ़ते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि शायद परमेश्वर जो है वो भविष्य में क्या होगा उसको पहले ही जान लेता है। अब हम चूंकि बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हमको इस शब्द का असली मतलब जो है वो पता नहीं चल पाता है। इस शब्द का असली मतलब जानने के लिए हमको पुराने नियम में चलना पड़ेगा, और पुराने नियम में इस शब्द का मतलब बताया गया है कि कैन यू It's the placing of the covenantal love, the choice of love, loving, wanting to love someone. तो इसका ये मतलब है पुराने नियम में कि परमेश्वर जो है वो किन्हीं व्यक्तियों के ऊपर अपना प्रेम दिखाता है, अपना वाचा रूपी प्रेम जो है वो जाहिर करता है, और परमेश्वर के वाचा रूपी प्रेम को जाहिर करने को ही यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो शब्द पुराने नियम में इस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है। The word know in the Old Testament is used to express the most intimate human relationship. You know, it's euphemistically put there to express a physical relationship. And that is the idea here, where it is intimate relationship. God foreknew is not merely God knew something, but God foreknew means that he placed his love on those whom he knew. और अगर हम पुराने नियम में देखें तो जब जानना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो जानना शब्द का इस्तेमाल एक विशेष अर्थ में होता है। जिस प्रकार से स्त्री और पुरुष के बीच में जब शारीरिक संबंध होता है वो एक दूसरे को भली प्रकार से जानते हैं, उसी संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। मतलब किसी को आप बहुत ही अंतरंग तरीके से, बहुत ही घनिष्ठ रूप से आप जानते हैं। तो यहाँ पे पहले से जानना शब्द का मतलब जो है पुराने नियम में वो ये है कि परमेश्वर ने जिनको चुना, जिनको जाना, उनके ऊपर उसने बहुत ही बहुतायत से अपने वाचा रूपी प्रेम को उंडेला, और उन्हीं जब उसने ये काम किया तो इसी काम को पहले से जानना कहा गया। So foreknowledge is not an impersonal action. It's not just a stock inventory of the number of believers that's going to come by, but it is an intimate action. इसलिए जब ये कहा जा रहा है कि परमेश्वर ने उन्हें पहले से जान लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने जो है कि ये जान लिया कि हाँ आने वाले टाइम में कितने लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, और उनका हिसाब किताब जो है उसने परमेश्वर ने उसको जान लिया। नहीं, परमेश्वर जब काम करता है तो मशीन के रूप में काम नहीं करता है। परमेश्वर जो है वो मानवीय रूप से, भावनाओं से भर करके, बड़े ही व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर जुड़ करके काम करता है। That is, this foreknowledge is deeply, intimately knowing of the believers. They are known by God. तो यहाँ पे पहले से जानने का मतलब ये है कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को, अपने विश्वासियों को बहुत ही करीब से जानता है, उनको बहुत अच्छे से जानता है। पहले से जानने का ये मतलब है। Love here is a verb, it is an action, it is intentional. यहाँ पे प्रेम जो है वो एक क्रिया है, वो एक इरादे के साथ में किया गया काम है। It is not random. वो यूं ही किया गया काम नहीं है। And because this love is intentional, therefore God,
The purpose of God is preordained. Because this love is intentional in the life of a believer, in the whole creation, therefore the purpose of God is preordained. और चूंकि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को, अपने विश्वासियों को एक इरादे के साथ में प्रेम करता है, जानबूझ करके प्रेम करता है, यूं ही ऐसे ही प्रेम नहीं करता है, इसलिए वो पहले से ही इस चीज को नियुक्त करता है। So those who he foreknew, he is predestined for his preordained work. And what is his preordained work? It is for their glory, it is for their good. और इसलिए जिनको उसने पहले से जाना, उनको उसने पहले से ठहराया कि जो उसका जो काम है, उसका जो पहले से नियुक्त किया गया काम है, वो क्या है कि वो महिमा का समय आए, उस महिमा के लिए उसने इनको ठहराया है। And we are brought under this work of God by the call of God. We are called by God. और हम परमेश्वर के इस काम में कैसे शामिल किए जाते हैं? हम परमेश्वर की बुलाहट के द्वारा हम इस काम में शामिल किए जाते हैं। This call is on the basis of the purpose and the will of God. ये जो बुलाहट है हमारे लिए, ये कैसे होती है? ये परमेश्वर के मकसद उद्देश्य के आधार पे, परमेश्वर की इच्छा के कारण ही ये बुलाहट हमारे जीवन में आती है। And that purpose is to bring the sons to glory, the freedom of glory. और वो मकसद, वो उद्देश्य परमेश्वर का क्या है? वो उद्देश्य और मकसद परमेश्वर का ये है कि उसकी जो संतान है, उनको वो महिमा प्रदान करे। The word call carries the notion of an invitation. यहाँ पे जब लिखा गया है कि उसने बुलाया, तो बुलाया शब्द में निमंत्रण शब्द छुपा हुआ है, उसका जो भाव है, वो भावना उसके अंदर है। But this invitation cannot be rejected. लेकिन ये ऐसा निमंत्रण है जिसको हम और आप इनकार नहीं कर सकते। This love cannot be resisted by the resistance of our will. उसके प्रेम को हम अपनी इच्छा शक्ति से ठुकरा नहीं सकते। And in calling us, he justifies us in Christ Jesus. और जब वो हमें बुलाता है तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो हमें सही ठहराता है, हमें धर्मी ठहराता है। He has called us so that we would be justified. That is, that we would be brought out from sin in Christ Jesus, in the work of Christ, in the person of Christ Jesus, to be brought into that glory with which God had initially formally created this world. और जब वो हमें धर्मी ठहराता है तो इसका मतलब ये है कि वो हमें पाप से बाहर निकालता है और वो प्रभु यीशु मसीह के कार्य के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उस महिमा में फिर से बहाल करता है जिस महिमा में उसने हमें सृष्टि के समय बनाया था। Therefore, to fulfill his purposes, to bring about that good, that eternal good with which he had created the creation, in which our life would flourish and be abundant, in which our life would finally find meaning, where there would be no tears, no sorrows. In order to bring that, he employs all things, all situations of our life to do so. इसलिए जब परमेश्वर चाहता है कि वो अंतिम भलाई, वो महिमा की भलाई हमारे जीवन में आए, जिस महिमा की भलाई को हम अदन की वाटिका में देखते हैं जब हमारी सृष्टि हुई थी, इस सृष्टि को जब उसने बनाया था जहां पे कोई दुख नहीं था, तो उसी प्रकार उस भलाई को पैदा करने के लिए ही परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों को, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो, उन सभी का इस्तेमाल करता है कि वो उसी भली सृष्टि के जैसे हमारे जीवन में परिस्थितियां या और सब कुछ उसी के हिसाब से पैदा करे। What is the goal of this foreknowledge? What is the goal of this love? परमेश्वर जब कहता है कि उसने हमें पहले से जान लिया है, इसका मतलब उसने हमें पहले से प्रेम किया है, तो इस प्रेम का क्या मतलब है? What is the goal? Goal of उसका मकसद क्या है? उस प्रेम का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? Will anybody want to answer that? कोई इसका जवाब देना चाहेगा? Well, anyways, the time is running out. So let me go ahead and say the goal of this love is glorified. परमेश्वर ने जो प्रेम किया, जिसको हमने कहा कि पहले से जाना मतलब पहले से उसने प्रेम किया, इस प्रेम का मकसद और प्रेम का उद्देश्य एक ही है कि हमें महिमा मिले। Wait, what
what does Paul say? Glorified? Isn't that in past tense? अब अगर अंग्रेजी भाषा में देखें तो उसमें लिखा है कि ये महिमा वाली बात जो है वो भूतकाल में यानी जो समय बीत गया उसमें कही जा रही है. Why is that so? Why is glorified in the past tense? It has still not happened. अगर हमें अभी भी महिमित नहीं किया गया है तो इसको भूतकाल में क्यों लिखा? The work is still on. That is what Paul has been trying to say. पौलुस इस बात को अभी तक यही कह रहा है कि ये काम जो है महिमा प्रदान करने का काम जो कि हमें भविष्य में महिमा प्रदान की जाएगी वो काम अभी भी चालू है, तो फिर इसको भूतकाल में क्यों कहा गया है? You remember the word work is in the present active, and the word glorified to which this work is leading is in the past tense. आपको ध्यान है कि अभी हम जब चर्चा कर रहे थे कि ये परमेश्वर जो काम कर रहा है वो वर्तमान काल में हो रहा है, आज के जमाने में हो रहा है, तो फिर ये महिमा देने वाली बात ऐसे कैसे हो सकती है कि ये महिमा पहले मिल गई? This is because Paul is certain about his destiny, about his ultimate good, because it is bound up in the will of God. We read that, he subjected the creation into futility, but in hope, in that will of God is our destiny, is our eternal good. And that is what he does out of his love. And Paul is certain about it. और पौलुस जो है वो इस बात को इसलिए ऐसा लिखता है कि ये महिमा जो है वो हमें पहले ही मिल चुकी है जबकि काम अभी जारी है. तो इसका मतलब ये है कि पौलुस इस बात में बिल्कुल पक्का है, उसको एकदम पक्का निश्चय है. और वो पक्का निश्चय इसलिए है क्योंकि वो कहता है कि ये बात जो है वो परमेश्वर ने ठानी है और परमेश्वर ने इच्छा की है. परमेश्वर जिस चीज की इच्छा कर लेता है, जिस चीज को ठान लेता है, वो पक्का होता है. जैसे कि उसने सृष्टि को व्यर्थता के अधीन किया लेकिन वो उसने आजादी भी दी और आजादी दे रहा है, उसी प्रकार से वो कह रहा है कि ये काम जो है वो परमेश्वर पक्का करेगा, निश्चय ही करेगा. और इसलिए वो कहता है कि महिमित किया गया. This is covenantal love and action, and this will come to pass. This is God's love, and he will bring it to pass, and he will bring us to glory. And there is no way that anyone who loves the Lord will miss out on this glory. और ये परमेश्वर का वाचा रूपी प्रेम है. परमेश्वर ने इस प्रेम को करने के लिए एक इरादा किया है, एक वाचा बांधी है. और इसलिए पौलुस जो है वो इस बात में पूरा पक्का है कि परमेश्वर इस काम को पूरा करेगा. वो अपने प्रेम में हो करके जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर महिमा प्रदान करेगा. So that brings us to that one thing which I have not talked about, and that is the statement that Paul uses: for those who love God, all things work together for good. और एक बात जो है मैंने जब इन सारी चीजों को कहते हुए आपके साथ में नहीं बांटी, वो ये है कि जब हम ये कहते हैं कि सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं, तो लिखा है कि उनके लिए जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं. अब what does that mean? Is this a conditional clause? अब अगर ये है कि ऐसी बातें मिलकर के, सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती उनके लिए जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो क्या ऐसा है कि परमेश्वर ने कोई शर्त रख दी है? Does this mean that those who love God enough will get all things good? क्या इसका मतलब ये है कि परमेश्वर से जो लोग पर्याप्त मात्रा में प्रेम करते हैं केवल उन्हीं के लिए सारी बातें मिलकर के भलाई उत्पन्न करेंगी? Absolutely not. That's not what Paul is trying to say. पौलुस इस बात को कहना नहीं चाह रहा है. बिल्कुल उसका मतलब नहीं है. Because our love is not self-generated love. We do not know how to love. क्योंकि हमारा प्रेम जो है वो स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम है. हमको ये पता नहीं होता है कि प्रेम कैसे करना चाहिए. It is not feelings that Paul is talking about here. It's not warm, fuzzy feelings because the Lord looks so cute. यहाँ पे पौलुस जिस प्रेम की बात कर रहा है वो एक भावना की बात नहीं कर रहा है कि अरे प्रभु जो हैं वो देखने में या उनका जीवन जो है, उनकी बातें जो हैं वो बड़ी प्यारी हैं, प्रभु भी बड़ा प्यारा है, इसलिए हमारे अंदर बड़ा एक अच्छी भावना पैदा होती है परमेश्वर के लिए, और वो प्रेम है. This is the love which flows out of the knowledge, because we know that God is at work. And as AJ had messaged, we know that God is at work because of the finished work of Jesus Christ.
और ये प्रेम जो है वो सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि ये प्रेम जो है वो उस ज्ञान से पैदा होता है जिसमें हम जानते हैं कि परमेश्वर ने ये सारी बातें हमारे लिए की हैं, और वो भी प्रभु यीशु मसीह में की हैं, जिसके द्वारा सब कुछ पूरा हुआ। और जब हम ये जान जाते हैं परमेश्वर के इस परमेश्वर को इस तरीके से जान जाते हैं, तो जो प्रेम निकलता है, उस प्रेम की बात यहाँ पे पौलुस कर रहा है। So when you look at जो क्रूस पे कुर्बा है, when you see him, you know that you are foreknown, you know that you're predestined, you know that you're called, you know that you're justified, and you know that you're glorified. And that is where you locate the roots of your love for God, not your warm, fuzzy, flea feelings. It is the love which is generated out of the work of God in your life and my life. और इसलिए जब आप प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर टंगे हुए देखते हैं, तब आप ये जान जाते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने मुझसे पहले से ही प्रेम किया है, उसने मुझे ठहराया है, उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे धर्मी ठहराया है, उसने मुझे महिमित किया है। आप इसलिए सब कुछ नहीं कहते कि नहीं, आपके अंदर एकदम प्रेम वाली भावना उमड़ पड़ी, नहीं। परमेश्वर के जब इस काम को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होते हुए जब आप देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान को जब आप देखते हैं, और जब इसका ज्ञान आपको होता है, तब जो प्रेम पैदा होता है, वही परमेश्वर के लिए यहाँ पे उसी प्रेम के बारे में बात की जा रही है। Christ Jesus, we know that we are able to love him because we know that he has placed his love even before the foundation of the world. प्रभु यीशु मसीह में होकर के ही हम, प्रभु यीशु मसीह के कारण ही हम परमेश्वर से प्रेम कर पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सृष्टि की रचना के पहले ही उसने इस प्रकार के प्रेम को ठहराया है। We love him because he loved us first. क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया, इसीलिए हम उससे प्रेम कर पाते हैं। And only this kind of love brings out glory out of our mess. और इसी प्रकार का जो प्रेम है, परमेश्वर का जो ऐसा प्रेम है, उसी प्रेम के कारण ही हम जिस प्रकार के उपद्रव में फंसे हुए हैं, जिस प्रकार के परेशानियों में फंसे हुए हैं, उस प्रकार के उपद्रव से परमेश्वर हमें बाहर निकलता है। This promise in Jesus Christ for that coming glory can bring the greatest comfort for our human sufferings. और प्रभु यीशु मसीह में होकर के हमको ये जो महिमा की अनंत आशा दी गई है, ये तभी मसीह में होकर के ही हमें हमारे दुखों में सहायता प्रदान कर सकती है। To see the depth of the love on the cross, my dear church. मेरी प्रिय कलीसिया, उस क्रूस पर आप प्रेम की गहराई को देखते हैं। God gave up. परमेश्वर ने दे दिया। Not on us. He didn't give up on us. उसने हमारे ऊपर आशा नहीं छोड़ दी, हमें यूं ही नहीं छोड़ दिया। But truly we should have been the ones given up. He should have given up on us. होना तो ये चाहिए था कि परमेश्वर हमें छोड़ देता। But because of the covenantal love, he did not. लेकिन उस वाचा रूपी प्रेम के कारण उसने हमें यूं ही छोड़ नहीं दिया। But he gave up his son, the sinless perfection. उसने अपने निष्पाप पुत्र को हमारे लिए दे दिया। One among the Trinity, one whom the Father loved, जो कि whom the Father found pleasure in, whom the Father said, "This is my well-beloved son, and I love him." And he gave up his son. जो त्रिएक परमेश्वर में से एक रूप था, जिसको कि परमेश्वर कहता है कि मैं उससे बहुत ही प्रसन्न हूं, जिसको कि परमेश्वर बहुत ही प्रेम करता था, उसने हमारे लिए दे दिया। So that he would bring us back to the fold again. ताकि वो दोबारा हमें अपने झुंड में वापस लाएगा। So that he would bring us back to glory again that we had squandered in the Garden of Eden. ताकि वो उस महिमा में हमें फिर से वापस लेकर के आए, जो अदन के बगीचे में परमेश्वर ने हमें महिमा प्रदान की थी। On the cross, the cry was stark. उस क्रूस पर जो वो पुकार थी, वो बहुत ही भयानक थी। It was a question in form of a cry. My God, why have you forsaken me? Why? प्रभु यीशु मसीह की पुकार के रूप में वो एक सवाल था कि हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? In other words, why did you give me up, oh God? अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो
कि हे परमेश्वर, हे पिता, तूने मुझे इस प्रकार से क्यों छोड़ दिया है? Do we know the answer for that question from that cross? क्या हम उस क्रूस को देखते हुए उस सवाल का जवाब जानते हैं? If you know the answer, you will love him even when sufferings may rise like water trying to drown you in them. अगर आप उस सवाल का जवाब जानते हैं, तो आपके जीवन में दुख जब बाढ़ की तरह भी आएंगे, तभी आप परमेश्वर से प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे। Love him, for he loved us first and is working all things to that ultimate glory. May his name be glorified. क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम उससे प्रेम करें, उस अनंत महिमा के लिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Thank you. शुक्रिया। मैं भाई आकाश से गुजारिश करूंगा कि जो हमने प्रभु के वचन से सुना है, उसके हिसाब से हम परमेश्वर को स्तुति की भेंट चढ़ाएं और स्तुति के साथ में ही हम अंगीकार की प्रार्थना भी करें। भाई आकाश। थैंक यू भैया। आइए हम प्रार्थना करें आज के सुने हुए वचन के अनुसार। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने ब्रदर आशीष के थ्रू दिया। प्रभु जी हम अपने आप को इतना अनुभवी मान लेते हैं, इतना अपने आप को प्रभु में इतने पुराने मानते हैं कि हम भूल जाते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे जीवन में क्या क्या किया प्रभु जी। अब क्या कर रहे हो आप हमारे जीवन में प्रभु जी। हम कैसे प्रभु जी आप हमारे जीवन में प्रभु जी सफरिंग के द्वारा आप अच्छाई उत्पन्न करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप इतने महान हैं, आप इतने अच्छे हैं कि प्रभु जी आप बुराई को बुराई से खत्म नहीं करते, या एक पूरी तरह ऐसे खत्म नहीं करते प्रभु जी। आप बुराई के साथ भी न्याय करते हैं। आप ऐसे परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु जी हमने जाना कि आपने कैसे हमें चुना है प्रभु जी। हम हर चीज प्रभु जी आपके अनुसार चल रही है प्रभु जी। हमें लगता है प्रभु जी कि आप कहाँ हैं, पर प्रभु जी ऐसा नहीं है प्रभु जी। आप हो हमारे साथ प्रभु जी। और प्रभु जी हमारे उस सफरिंग में, उस हमारे तकलीफ में भी प्रभु जी आप हमारे साथ हो, और उस तकलीफ में भी आप एक अच्छाई, एक वायदा करते हैं प्रभु जी। उस वायदा एक आपके राज्य के लिए प्रभु जी। प्रभु जी हमने जाना आज कि कैसे प्रभु जी हम आपको प्रेम नहीं कर सकते प्रभु जी। आपने हमें प्रेम किया, इसलिए हम आपको प्रेम कर पाते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी कैसे प्रभु जी, और प्रभु जी जब हमको क्रूस को देखते हैं तो प्रभु जी हम जानते हैं कि प्रभु जी उससे बड़ा और कोई दुख नहीं है, उससे बड़ा कोई सफरिंग नहीं है, पीड़ा नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी और जब हम और वही चीज हमें आशा देती है एक उस राज्य के लिए प्रभु जी। और हमने जाना कि कैसे पौल प्रभु जी हमारी पीड़ा को प्रभु जी एक अच्छे रूप में एक कम नहीं आंकता, पर प्रभु जी वो कैसे प्रभु जी हम जब वो क्रूस को निहारते हैं प्रभु जी, तो प्रभु जी हमें एक आशा देती है प्रभु जी। प्रभु जी हो सके प्रभु जी हम आप में बने रहें, और प्रभु जी उस पीड़ा में भी प्रभु जी हम आशा रखें प्रभु जी। प्रभु जी आज के इस वचन के लिए फिर से धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ प्रभु जी, आमीन। आमीन। शुक्रिया आकाश। अभी भेंट अर्पण का समय है। मैं गुजारिश करूंगा कि भाई अभिषेक उसमें हमारी अगुवाई करें। आप अपने भेंटों को QR कोड का